So solve this problem. There is a equilateral triangle. Okay, so this is the equilateral triangle. At the vertices of equilateral triangle, at the vertices of equilateral triangle, at the vertices of equilateral triangle, the three mass are placed. 3-point mass are placed. 1 kg. There is a mass 2 kg, and this mass is 3 kg. Correct? Any problem? Yes, sir. So you have to calculate. No problem, sir. Yes, you have to calculate center of mass of this system of particle with respect to given frame of reference. Okay, so this is your, देखिए कल yesterday I tell you one thing कि center of mass, how we can center of mass is actually position of a, it is a position where the total mass of the system will be lie. So to get the position of center of mass, we required Cartesian coordinate system or frame of reference. Okay, so okay, तो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये there are three mass placed at the equilateral at the side of equilateral triangle, and the side length is 5 meter. So you have to tell what is the position of center of mass. Tell me the answer, how we can solve this problem. कैसे करें? पहले कोऑर्डिनेट लिख लेंगे. Yes. M1 कहाँ पे है, Yes. M2 कहाँ पे. उसके बाद फिर x एक्सिस और y एक्सिस का अलग अलग करके निकालेंगे पोजीशन. Yes. So you can write CM का. हाँ, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0 है ना, या क्या हो जाएगा 5,1. So this is 0. what is this? What is the value of x for this? This is 5/2 ना. Perpendicular. हाँ. So this is the 5/2 comma. What is the perpendicular? What is the length of this? 3/2. 3/2. Are you sure? Length. So see, this is the right hand triangle, na? So this length, you have to remember. Okay, this is the length is a/2, and this is the a. So what is this? What is this? Let's suppose h. So h square plus a/2 whole square, that is equal to a square. So h square comes to be a square minus a square by 4. So this is 3/4 a square. So h is equal to √3/2 a square a. So in an equilateral triangle, the height of the triangle is √3/2 a, where a is the side of triangle. So what is this? So we can write y √3/2. Yes, y √3/2 into 5. So we get the coordinate. First we have to, whenever you have to calculate the center of mass of the system of particle. So what you have to do, you have to first choose your coordinate system. First define the x-axis. Step 1 is define the X-axis. x-axis, y-axis and z-axis. Because all particles are into a plane, so we consider there is a no z-axis. Okay,
But if the particle into the space, then we have to consider this axis also. So here first step to define x, y and z. Then step 2, define the coordinates. Define the coordinates of particles with respect to defined axis. Okay. And step 3, you have to apply the formula. You have first we calculate the position of the center of mass of this particle along x-axis. So we have to apply this formula. xcm is equal to m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by m1 plus m2 plus m3. So what is the m1 here? That is 1 kg. What is the x1? That is 0. What is the m2? That is 2. What is the x2 here? That is 5. Plus what is the m3? That is 3 into what is this distance, x coordinate of this particle? That is 5/2. So 5/2 divide by 1 plus 5 1 plus 2 plus 3. So this become 10 plus 15/2 means 7.5 divided by 3216. So this becomes 6 17.5 divided by 6. So what is the value by of 6. yes, 5, 6. meter. Okay, meter. In the same manner, you have to calculate the y coordinate of center of mass. Then you have to calculate y coordinate. 2.9. Okay, very good. 2.9 meter. Correct. So Yes. this is the the position of center of mass along x-axis means that will be if you calculate this what is the value of 17.5 by 6? 17.5 by 6. 17.5 by 6, 2.9, sir. So this is 2.9 approx, 2.9 approx. So means that center of mass of this, actually 2.91666 आ रहा था, sir. 2.91666. yes, so the YCM is not 2.9 actually. YCM there's a different. Then YCM is what? 1 into 0 plus 2 into 5. That is 0 actually. Y2 is 0. Here Y2 is 0 because this particle lies on the x-axis. So you can say 2 into 0. 2 into 0. 2 into 0 plus m3 is there 3 into root 3 by 2 into 5 divide by total mass, that is 6. So that is what 3 1 ja 3 3 2 ja 2. So this is 5 root 3 by 4. So this comes to be yes, root 3 divided by 4 into 5. So this comes to be 2.16 meter. So the center of mass, if you replace this as a point mass, this whole system, if you replace this whole system by a point mass, somewhere here, the position of center of mass 2.9. So this is 2.5. So 2.9 something here. So this is the position. This is the position of center of mass. Means if you replace this 3 particle by a single particle, which mass is m1, m2 plus m3, which is equal to 6 kg. So you have to be put this mass at this location. So this is what your xcm, and this is your YCM. Correct? Any problem? yes, sir. Very simple. No, sir. So this is for 3 we can calculate the center of mass for 3 particles if we have in a system we have 3 particles or more than 3 particles.
suppose we have more than 3 particles, suppose we have 4 particles, so we can do this thing for 4 particle also. Okay, चलिए ठीक है, तो ये हो गया. ओके अच्छा, अब एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट्स के फॉर्म में है, थोड़ा सा नोट वेरी इंपॉर्टेंट. सो सपोज एक पार्टिकल है आपका जिसका मास क्या है, लेट्स सपोज m1. एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m2. और ये दोनों पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एट ए डिस्टेंस d पे रखा हुआ है. और आपसे पूछता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. ओके, so if there is a one particle whose mass is m1, another particle of mass m2 placed at a distance d. Okay, so what is the position of center of mass? So how we can calculate, so simple, very simple. Let's suppose we assume that, okay, we assume that this is the position of center of mass, this is the position of center of mass. I assume, you can think there's a 2 particle of mass m1 or m2, so I assume that the center of mass lying here. Okay, I assume the position of center of mass of these 2 particle here, means at that location total mass will be lying m1 plus m2. I assume this thing. So how we can calculate this position? So let's suppose we consider the position of center of mass from this particle is at a distance x1, and this is the x2. Okay, so this show the position of center of mass from m1, this show the position of center of mass from m2. Correct? हेलो, ठीक है. यस सर. हम ना मान लेते हैं कि हमें नहीं पता सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, तो हमने मान लिया कि इन दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा. तो ये कितने डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ मास इस पार्टिकल से, एट ए डिस्टेंस x1. ये कितने डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस x2. तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू 0, मीन्स जहां पे सेंटर ऑफ मास होगा हम मान लेते हैं वहीं पे हमारा ओरिजिन होगा. सो एक्सीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0. एक्सीएम क्या आ जाएगा आपका, 0. एनी प्रॉब्लम? हाँ, तो एक्सीएम इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2. यही फॉर्मूला लगेगा. सो व्हाट इज द एक्सीएम, दैट इज 0. सो अब देखो ये जो पार्टिकल m1 है वो इस सेंटर से, इसके सेंटर ऑफ मास से लेफ्ट साइड में है, so that's why we put here sign minus. माइनस. हाँ, यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं m1 माइनस ऑफ x1. ठीक है, और ये जो x2 है वो सेंटर ऑफ मास से इधर की तरफ है, तो आई पुट हियर प्लस. सो ये 0 कब होगा, जब ऊपर वाला टर्म 0 हो जाए. मतलब हम ये कह सकते हैं कि m1 x1 प्लस m2 x2 इक्वल टू क्या हो जाए, 0. यानी कि m1 x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 x2. करेक्ट है? एनी प्रॉब्लम? सो m1 by m2 is equal to x1 by x2, सॉरी x2 by x1. ठीक है, अभी मैं इस पे दोबारा आता हूं इस बात पे, x2 by x1. हेलो, यस सर. ओके, सो दिस इज द x2 by x1. अच्छा, अब एक चीज मुझे बताओ कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, मींस d इज इक्वल टू क्या था आपका, x1 प्लस x2 था. तो मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं यहां से x1 कॉमन x1 बाहर निकाल लूं तो ये क्या हो जाएगा, या x2 बाहर निकाल लूं तो ये क्या हो जाएगा, या x1 निकाल लेता हूं. ठीक है, x1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x2 by x1. सो यू कैन पुट x1 1 प्लस x2 by x1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, m1 by m2 लिख सकते हैं. तो यहां से x1 कितना आ जाएगा, x1 आ जाएगा m2 इंटू डी अपॉन में m1 प्लस m2. करेक्ट? एनी प्रॉब्लम? हेलो, नो सर. तो अगर हम डिस्टेंस जानते हैं इन दोनों No, पार्टिकल्स, हाँ इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जानते हैं d है, और इन दोनों का मास जानते हैं, तो हम बता सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का
पोजीशन, इस मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इस पार्टिकल से कितने डिस्टेंस पे होगा, तो एट अ डिस्टेंस x1 होगा, दैट इज इक्वल टू m2d अपॉन में m1 प्लस m2, करेक्ट ना? Yes, sir. So how we can calculate x2? So you can say x2 equal to क्या होगा, x1 अपॉन में m1 अपॉन में m2. So what is the x1? That is m2d अपॉन में m1 प्लस m2 है, पुट करो यहाँ पर, तो m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू m1 d अपॉन में m1 प्लस m2, सॉरी x2 इज इक्वल टू, करेक्ट? M2. यस, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, No, sir. वेरी 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 इजी, बहुत इजी है कि यदि अगर दो पार्टिकल है उनके बीच का डिस्टेंस d है, तो x1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन इस पार्टिकल से, x2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, अब हम निकालेंगे ऐसे करके, ठीक है? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ यहां पर कि यदि मैं कहता, यहां से दो बातें हो सकती हैं कि यदि m1 बड़ा हो गया m2 से, इसका मतलब ये जो पार्टिकल होगा वो भारी होगा एज कंपेयर टू इसके, है ना? इसका मास ज्यादा हो गया, इसका मास कम हो गया, ये भारी M2 होगा। के तो कॉमन सेंस से मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास किधर की तरफ होना चाहिए, किसके पास होना चाहिए, m1 के पास या m2 के पास? M1 M1 के पास, है ना? M1 के पास। तो देखो m1 अगर ग्रेटर देन हो गया, अगर m1 ये भारी हो गया, ये हल्का हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, m1 by m2 इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हो गया, x2 by x1 ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हो गया, x2 इज ग्रेटर देन x1। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ मास का, जो x2 डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू x1 के। इसका मतलब पार्टिकल का जो सेंटर, इस पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो किसके पास होगा, भारी वाले के पास होगा। आ रहा बात समझ में, है ना? क्योंकि x1 की वैल्यू Yes, कम हो sir. गई, x1 की वैल्यू कम होने का मतलब सेंटर मास इसके पास होगा, और x2 की वैल्यू कम होने का मतलब सेंटर मास इसके पास होगा। तो जो भारी होगा उसी के पास, उसी तरफ जो होगा सेंटर ऑफ मास होगा। जैसे अगर मैं कहता हूं 10 kg का है और ये सपोज 5 kg का पार्टिकल है, तो सेंटर ऑफ मास किधर की तरफ होगा, 10 kg वाले के पास होगा, ना कि 5 kg वाले के पास होगा। कोई प्रॉब्लम? हेलो? No. हाँ, अगर No वहीं, problem. हाँ वहीं पर अगर मैं कहता m1 इज लेस देन m2, सो देन इट्स कम x1 इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन x2। सो ये ज्यादा होता, x2 कम होता, ठीक है? ओके, हेलो? Yes, sir. तो रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यह बाद में प्रॉब्लम्स में यूज होगा, ठीक है? सो इफ देयर इज अ टू पार्टिकल व्हिच इज एट अ डिस्टेंस d, देन हाउ टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास। तो दो पार्टिकल है और सेंटर ऑफ मास उस जगह पे होगा जिस उसके पास होगा जिसका मास जो है ज्यादा होगा। तो अगर मैं मान के चलो m1 कहता हूं ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन m1 के पास होगा, ठीक है? ओके, ठीक Yes, sir. है, वेरी सिंपल। तो अभी हमने दो क्लास के अंदर, हमने जो दो क्लास के अंदर पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाला है। देखो कल भी निकाला था हमने, आज भी निकाला है। सेंटर ऑफ मास मतलब हमने ये निकाला कि एक ऐसा पॉइंट निकाला जहां पे पूरे सिस्टम का मास लाई करे। बट इस सिस्टम में मुझे बताओ जो भी है वो सारे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। पहले हम एक पार्टिकल्स होता था उसके बारे में स्टडी करते थे, हमने एक से दो पार्टिकल कर दिया, फिर 2 से 3 कर देंगे, 3 से 4 कर देंगे, 5 कर देंगे, है ना? और अगर ये सभी पार्टिकल्स Yes, sir. एक सही मैनर में अरेंज हो, ये सारे पार्टिकल्स अगर एक पर्टिकुलर फैशन में अरेंज हो, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक बॉडी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बॉडी मिल जाएगा, एक है ना? बॉडी है ना? एक uh कॉन्टिन्यूअस बॉडी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी मिल जाएगा, है ना? बॉडी यस, यस सर कॉन्टिन्यूअस बॉडी, कॉन्टिन्यूअस बॉडी। कॉन्टिन्यूअस बॉडी का मतलब क्या हुआ? बॉडी का मतलब क्या हुआ कि इसमें जैसे अगर मैं एक रॉड की बात करता हूं, सो लेट्स सपोज दिस वी हैव अ रॉड, okay, so in the rod what happened, there's an infinite number of particles, infinite number of particles,
infinite number of Particles. particles which are placed very close to each other. Okay, very close to each other means this is the particle, this is the particle, very close. Okay, such that there is a no discontinuity, कहीं पे भी discontinuity नहीं है. Discontinuity नहीं है. So the all particle are placed very close. Okay, हमने मान लिया है कि we have a such kind of body which is continuous. A body will be continuous when the all particles into the body are placed very close to each other, such that there is a no discontinuity, means there is a no gap between the particles. No gap between the particles. Okay. Particles. Yes. Yes, sir. In continuous body, infinite number of particles placed continuously, or placed continuously. So that is called continuous body. Okay, so इस बॉडी में भी दो तरह का बॉडी हो सकता है. ठीक है, one is uniformly distributed, mass is uniform distributed, mass is uniformly distributed. और दूसरा क्या हो सकता है, mass is not uniformly or non-uniformly distributed. Non-uniformly distributed. Correct? Yes, sir. अच्छा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हुआ कि मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसका मतलब क्या हुआ, मान लो ये रॉड है हमारे पास. ठीक है, मान लेते हैं ये रॉड है. ठीक है, दिस इज द रॉड. ओके, सो व्हाट हैपन if you consider any two portion on this rod, suppose I consider this portion also this portion, okay, which is a different location. Okay, but we consider the same amount. यहां पे जो पोर्शन कंसिडर कर रहे हैं उसका अमाउंट क्या है, सेम है. So if we see the mass of this portion, that is also dm, and the mass of this portion is also dm, means mass is not change point to point, means mass of the rod will not change point to point. Okay, so it means that mass is uniformly distributed. At every location we have same amount of mass. Okay, so suppose if I consider, यहां पर मैंने जो पोर्शन, जितना बड़ा पोर्शन कंसीडर किया है उतना ही बड़ा पोर्शन यहां पे भी कंसीडर किया है, तो जितना मास यहां पे होगा उतना ही मास यहां पे होगा. ठीक है, सो वी से दैट कि दिस मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट ईच लोकेशन. ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, कोई प्रॉब्लम? हेलो? No, sir. और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन? Non-uniform distribution ki means what? Suppose we have a rod. Okay, suppose we have a rod, and if we consider here one portion and also here one portion. Okay, portion का जो length है dxc है, यहाँ पे भी dxc है. But if you calculate the mass here, mass of this portion, that is dm1, the mass of this portion is dm2. So the mass are not same. Mass are not same. But in this case, you can say the mass is Same. at every location will be same. So इसे कहते हैं uniform distributed, इसे कहते हैं non-uniformly distributed. Okay? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? हाँ. है ना? Yes, sir. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, प्रैक्टिकली देखें, तो जैसे रॉड, कुछ बर्तन उठा लो, कोई बर्तन उठा लो, जैसे लोटा उठा लो, लोटा है ना, लोटा को दे उठा लो, तो लोटे में तुम देखोगे जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वहां पर ज्यादा मास होता है, नीचे में जो उसे रखने के लिए बनाया हाँ. अभी मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर पोर्शन. तो मास जो है वो हर एक लोकेशन पे वेरी कर रहा होता है ना, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है ना. बट वहीं पे अगर प्लेट हाँ.
कर लो, प्लेट कंसिडर कर लो, है ना, एक थाली कंसिडर कर लो. So you can see the mass is uniformly distributed into that plate. Okay, so we have different kind of body. Okay, we have different kind of body. One is there is a one body where mass is continuously distributed, and one is where mass is not uniformly distributed. But that kind of body is called continuous body. This body is called continuous body. Okay, Continuous body. so Yes, in sir. that body there is an infinite number of particles. Okay, so if I consider this is as a system, if we consider this rod as a system, so yesterday we find the center of mass of body for few particles. Okay, yesterday we solve or we get the center of mass for few particles. Suppose we have only 2 particles, 3 particles, 4 particles, and 6 particles, maximum 10 particles. So you can easily find out the center of mass, okay, for that system of particle. But if you have infinite number of particles and that is also continuously distributed, so it is very difficult to locate. First difficulty is to what? You have to look if you want to locate the position of each particle, that is very difficult. That is very difficult. Okay, as well as you as well as there's a lot of infinite number of particles. So if you try to add, okay, if you try to add the all terms into that equations, that is also very difficult. So what we have to do, फिर हम क्या करें जब वो मेथड अगर डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ पे तो क्या करें? Okay, so we approach another method, that is what? Integration method. Okay, ठीक है, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन आए कि मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, या कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन आए, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड आ जाए, मींस इंटीग्रेशन लगाना है. अब क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन लगेगा. ठीक है, तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल, हाँ Yes. ठीक है, इंटीग्रेशन तभी लगेगा जैसे मान लो कि अगर मैं रॉड की ही बात करता हूं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सपोज दिस इज द रॉड. ओके, सो दिस इज द रॉड, I just consider this is the rod. Okay, so to calculate the center of mass, you have to define the x-axis and y-axis. So this is your x-axis, and this is your y-axis. Okay, so what we do, क्या करेंगे हम कि मान लेते हैं इस बॉडी के ऊपर एक पार्टिकल है यहाँ पे, जिसका मास कितना है mi, और ये कितने डिस्टेंस पे यहाँ से, मान लो xi डिस्टेंस पे है. कितने डिस्टेंस पे है? xi डिस्टेंस पे है. ठीक है ना. इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, है ना. एक पार्टिकल नहीं होंगे, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे. तो हम क्या करते थे सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, क्या फॉर्मूला लगाते थे? xcm इक्वल टू mi xi, है ना. Yes. और यहाँ पे बहुत Yes, sir. सारे पार्टिकल्स होंगे, तो ऊपर में सारे टर्म को ऐड करते थे. तो हम ऐसे करके लिख दें, Add करते हैं. Yes. समेशन में i इक्वल टू 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है. ठीक है, डिवाइड बाय समेशन में हम क्या करते थे, जितने भी पार्टिकल्स होते थे उसके मास को ऐड करते थे. सो mi फ्रॉम i इक्वल टू 1 से लेकर के इंफिनिटी तक. करेक्ट? हेलो, Yes, sir. तो अब मुझे बताओ यहां पर कि ये जो समेशन है, समेशन का मतलब क्या होता है? समेशन का मतलब क्या था बताओ? टोटल इंटीग्रेशन. जब हम छोटे छोटे चीजों को जोड़ते हैं और हम क्या, हाँ, दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन ना. ओके, Yes. दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन. देखो ये तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हमारे पास लेट सपोज ये रॉड होता, ठीक है, इस रॉड के ऊपर ये हो गया मेरा y एक्सिस और ये मेरा हो गया x एक्सिस. तो इस रॉड के ऊपर यदि एक मैं छोटा सा पोर्शन, छोटा सा पार्टिकल कंसीडर करूं, छोटा सा पार्टिकल जिसका कोई शेप वगैरह साइज नहीं होता, एक छोटा सा पार्टिकल, यानी ये जो मैंने ये जो पोर्शन कंसीडर किया है, इसका लेंथ हो गया dx. dx का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल. dx का मतलब क्या हो गया?
वेरी वेरी Very स्मॉल। very small. हाँ, कितने डिस्टेंस पे कंसिडर किया इस पार्टिकल को? एट अ डिस्टेंस x के ऊपर, एट अ डिस्टेंस x के ऊपर एक छोटा सा पार्टिकल कंसिडर किया एट अ डिस्टेंस x के ऊपर। इसका मास भी क्या होगा? छोटा होगा, dm। आया बात में? एक छोटा सा पार्टिकल कंसिडर किया इस रॉड के ऊपर जिसका मास क्या है? dm। कितने डिस्टेंस पे है वो? x डिस्टेंस पे है। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैं कंसिडर कर सकता हूं इस रॉड के ऊपर, है ना? ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स मैं इनफाइनाइट नंबर कंसिडर कर सकता हूं। तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो मैं Exactly. क्या करूंगा? x है ना, इट इज अ पोजीशन ऑफ पार्टिकल, x इज अ पोजीशन ऑफ पार्टिकल। मैंने ये dm पार्टिकल है, dm मतलब बहुत छोटा सा मास है, इट मींस इट इज अ पार्टिकल। यहां दिखाने के लिए मैंने बड़ा दिखाया है, बट इट इज अ पार्टिकल क्योंकि dm बहुत छोटा है। तो x रिप्रेजेंट व्हाट? पोजीशन ऑफ पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक है वो, मैक्रो नहीं है। yes, x is the position of particle where dm is the position of mass of this particle. ओके ऐसे मैं कितने सारे पार्टिकल्स कंसीडर कर सकता हूं? इनफाइनाइट। सो व्हाट वी डू, ऐसे छोटे छोटे टर्म्स को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे तो उसके लिए मैंने क्या लगाया यहां पर? इंटीग्रेशन। क्या लगाया? इंटीग्रेशन। आया बात? इंटीग्रेशन। डिवाइड बाय, मैं क्या कर दूं? इसी तरह से टोटल मास निकालना होगा तो क्या करूंगा? इस छोटे छोटे मास को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल मास मिल जाएगा। ठीक है, ओके, हेलो। जी जी। So we apply this Yes, sir. relation. Yes, Yes, we sir. apply. Yes, we apply this relation. We can apply this relation when there is a continuous distribution of mass. When there is a continuous distribution of mass. Okay. So this is for continuous distribution of mass. If we have a body and the mass is, or a continuous body, simple, not a distribution, a continuous body, you can say continuous body. So and you want to calculate the position of center of mass, then you have to apply the integration method. Okay, you have to apply the integration method. Any problem? Hello? No, sir. नो सर। हाँ, उसी तरह से YCM कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। YCM इक्वल टू Y dm अपॉन में dm, और ZCM भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज Z dm अपॉन में dm। ओके, यहां पर एक चीज नोट करना है, इस फॉर्मूले में खास बात क्या है कि ये जो x दिख रहा है आपको, ये जो x दिख रहा है, ये x क्या है? x क्या है? इट इज अ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm। मतलब जो आप छोटा सा मास कंसीडर कर रहे हो उसका पोजीशन, मतलब उसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है। क्योंकि ये जो छोटा सा पार्टिकल है इसका मास जो है वो यहीं पे रहेगा। आगे आगे समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। सिंपल सा समझो कि अभी मैं लिख रहा हूं, बाद में आपको थोड़ा समझ में आएगा। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पार्टिकल dm। ठीक है, ये कैपिटल एक्सियम क्या है? ये पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। बट ये हाँ, और ये जो x है, वो जो x है वो क्या है? इस छोटे से पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो है। ओके, उसी तरह से y क्या है? y इज द, इट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm along y axis। यहीं पे गलती होती है, ठीक है, y एक्सिस, ठीक है, और z आल्सो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm along z एक्सिस। ओके, सी, जैसे मैंने Yes, sir. कहा कि बॉडी अगर कॉन्टिन्यूअस होगा देन यू हैव टू अप्लाई द इंटीग्रेशन मेथड, है ना। अब इंटीग्रेशन लगाओगे तुम्हें मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा,
फिर तुम इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करोगे, मतलब डिफरेंस इंटीग्रेशन करोगे, कैलकुलेशन करोगे, और तुम्हें फिर सेंटर ऑफ मास निकल के आ जाएगा, है ना, है ना? यस सर। पर ये तो उस बॉडी के लिए लगेगा, इस अगर ये कैलकुलेशन है, अगर तुम्हें कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो कोई फायदा है नहीं ना, है ना? अगर इंटीग्रेशन करना पड़ गया, इंटीग्रेशन बहुत खतरनाक सा है, तो फिर हो गया काम, है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ है ना? तो हाँ। ये Yes, जो, sir. हाँ, ये जो मेथड हम लगा रहे हैं वो उस बॉडी के लगाएंगे जिसका ज्योमेट्री सिंपल हो। ज्योमेट्री मतलब जिसका शेप और साइज सिंपल हो। शेप और साइज क्या हो? सिंपल हो। जैसे रॉड हो गया, प्लेट हो गया, रिंग हो गया, ठीक है, कोन हो गया, ठीक है, स्फीयर हो गया, ठीक है, हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। तो इन सभी बॉडी का क्या है? शेप सिंपल है। शेप क्या है? सिंपल है। तो हम लगा लेंगे, इंटीग्रेशन से भी निकाल लेंगे। बट मान लो यदि हमारे पास कोई लोटा है, जग है, ठीक है, तुम दुनिया में देखते हो ना बहुत सारे टाइप का ग्लास होता है, बहुत टाइप के ग्लास वगैरह होता है, ठीक है, सिलेंडर वगैरह होता है, बहुत खतरनाक खतरनाक टाइप के डिफरेंट डिफरेंट शेप के दिखते हैं। अगर उन सब का अगर सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो तुम सोचो, अगर तुम्हें इसमें इंटीग्रेशन लगाना पड़े और इंटीग्रेशन मेथड से तुम सेंटर ऑफ मास निकालना चाहो तो कितना डिफिकल्ट होगा, है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ सर। है कि नहीं है? तो वहां पर फिर हम कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास? तो वहां पर जो निकलेगा वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकलेगा। कैसे निकलेगा? एक्सपेरिमेंट के थ्रू। कैसे निकलेगा? एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो मैंने जो लिंक शेयर सर किया, आपने गलत लिखा। क्या? कहां पे? अच्छा x का इट इज द अच्छा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अच्छा डीएम अच्छा, अलोंग x एक्सिस आएगा ना सर। ओके 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 ओके, थैंक्स। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि यदि कॉम्प्लिकेटेड शेप का बॉडी हो, किस टाइप का बॉडी हो? जिसका शेप कॉम्प्लिकेटेड हो। जैसे मैंने कह दिया कि कटोरी हो गई, या आपका क्या कहते हैं लोटा हो गया, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप का जो होता है, डब्बा वब्बा होता है, बहुत गंदा गंदा टाइप का ऑब्जेक्ट सब दिखता है। तो ये सब जितने भी हैं सामान दुनिया में दिख रहा है, तो इन सब का शेप जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर शेप कॉम्प्लिकेटेड हुआ और तब हमें अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो क्या हम निकाल पाएंगे सेंटर ऑफ मास उसका इस इंटीग्रेशन मेथड से? इफ यू ट्राइंग टू अप्लाई द इंटीग्रेशन मेथड, देन इट इज वेरी वेरी लार्ज कैलकुलेशन, बहुत बड़ा लार्ज। तुम्हें कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी उस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, है ना? प्रोग्रामिंग करना पड़ जाएगा, अब फिर भी आंसर जो आएगा वो उतना एक्यूरेट नहीं आएगा। तो फिर कैसे करें, क्या करें? तो उसको करने के लिए क्या जुगाड़ बिठाया कि एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, है ना? फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो एक्सपेरिमेंट करेंगे और देन उसके बाद हम सेंटर ऑफ मास उसका कैलकुलेट करेंगे। तो जो मैंने कल एक लिंक शेयर किया है, कहां पे लिंक शेयर किया है? गूगल क्लासरूम के ऊपर, ठीक है। उस प्रोफेसर ने डेमोस्ट्रेशन दिया है कि कैसे तुम सेंटर ऑफ मास निकालोगे प्रैक्टिकली। मैथमेटिकली हम निकाल सकते हैं, अब मैं आपको मैथमेटिकली करके दिखा रहा हूं, पर प्रैक्टिकली कैसे निकालोगे सेंटर ऑफ मास, वो आपको वहां पे अच्छी तरह से समझा देंगे, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा वीडियो, अगर ना समझ में आए तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, चला ही देता अभी, ठीक है। तो वो जो है, मैं पहले आप लोग एक बार देखो उसको, देन मैं कल उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो बहुत अच्छे से बताया है कि आप प्रैक्टिकली किसी भी बॉडी का कोई भी डिफरेंट टाइप का, जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास अगर सपोज अभी कॉपी है, मैं एक बार मैं अपना कैमरा ऑन करता हूं, रुको, ओके, हाँ, जैसे ये कॉपी है ना, दिख रहा है आपको, ये कॉपी है। इस कॉपी का यदि मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है ना, इस कॉपी का सेंटर ऑफ मास निकालना है, यू कैन सी द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास? तो तुम देखोगे इसको घुमाते हैं ऐसे करके, देखो, है ना, घुमाते हैं। तो अगर हमारी उंगली यदि हमारी उंगली इसके बीचों बीच है, इसके बीचों बीच है ना, इसके बीचों बीच है, तो इजिली घूम जाता है ना, इजिली घूम रहा है ना, घूम जाता है, गिरता नहीं है। बट अगर मान के चलो उंगली थोड़ा साइड में हुआ तो ये घूम नहीं पाएगा, घूम नहीं
पाएगा। तो हम इससे क्या पता करते हैं कि इसका जो सारा का सारा मास है वो इसके सेंटर पे, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। कहां पे लाई करेगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर, ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर। तो तुम उसे वीडियो को देखना, ठीक है, उसमें ज्यादा अच्छे से, क्योंकि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट वगैरह है नहीं जो मैं तुम्हें समझाऊं, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि प्रैक्टिकली हम सेंटर ऑफ मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा उसे देखने में, ठीक है। ओके, यस, सो ना, तो ये हो गया हमारा। हम अभी करेंगे इंटीग्रेशन मेथड से, हाउ वी कैन कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बाय मैथमेटिकल मेथड। ओके, हाँ, एक पॉइंट इसमें मैं और आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर, है ना, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास इक्विलेटर ट्रायंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल है ना, इक्विलेटर ट्रायंगल है, या फिर आपके पास इस टाइप का प्लेट है ना, और मास क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, दिस इज द मास, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो इस वाले केस में इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, जैसे अगर मैं इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, जब इसके कॉर्ड, इसके इस वाले कॉर्नर को इस वाले कॉर्नर से मैच कर दो और इसके इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मैच कर दो, तो जहां पर ये मीट करेगा, जहां पे ये मीट करेगा, ये क्या कहलाएगा? इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, जीसी, ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेंटर। इंटरसेक्ट। हाँ, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल सेंटर। क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो यहां अगर मास कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर मास कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा। क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा, क्योंकि मास क्या है यहां पर? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आ रहा भाषण में? हेलो, मास यदि यस सर। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एक जगह सेम अमाउंट का मास है, हर एक जगह कोई भी पोर्शन उठा लो कहीं पे भी, तो हर एक जगह सेम अमाउंट का मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस वाले शेप का जो ज्योमेट्रिक, मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर किसका होता है? कि किसी एक शेप का होता है। कोई एक ज्योमेट्री दे रखी है आपको, मींस ट्रायंगल दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है, दिस आर डिफरेंट काइंड ऑफ ज्योमेट्री यू हैव, तो उसका जो सेंटर होगा, जो मैथमेटिकली आप निकालते हो, वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। बट मास क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मुझे इस इक्विलेटर ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर निकालना होगा, तो क्या करेंगे? इसके इस कॉर्नर को लेंगे और इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, उसी तरह से इसके इस एज से नीचे वाले पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से इसके इस एज से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो जहां पर ये तीनों मीट करता है, जहां पे ये तीनों मीट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल सेंटर। क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल सेंटर। और यही तुम्हारा सेंटर ऑफ मास भी होगा इस इक्विलेटर ट्रायंगल का, यदि मास क्या हुआ? आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ। बट मान लो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मान लो मास इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे समझे? कि मान लेते हैं ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो अगर मैं यहां पे कहूं कि इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर ज्यादा मास है, इस जगह पर क्या है? ज्यादा मास है, जो रेड वाला बना रहा हूं, इस पोर्शन पे क्या है? मास ज्यादा है, ठीक है। जहां जहां रेड दिख रहा है आपको, ज्यादा है। मास ज्यादा है, जहां जहां पे रेड दिख रहा है वहां पे मास ज्यादा है, और जहां पे आपको ये दिख रहा है वहां पे मास कम है, ठीक है। ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, अलग अलग मास है हर एक जगह पे। तो इस वाले केस में ज्योमेट्रिकल सेंटर तो यही होगा, ये होगा इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर।
ये इसके कॉर्नर को मीट कर देंगे हम यूं करके। ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। बट इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो अलग होगा। कहां होगा मुझे बताओ, कहां पे होगा? रेड वाले रेड की पोर्शन में, साइड पर होगा, रेड की साइड रेड पर के थोड़ा साइड सा में होगा ऊपर। क्योंकि यहां पर मास ज्यादा है, तो वी कैन से Yes, सेंटर ऑफ sir. मास यहां पे होगा। तो यहां पे देख सकते हो ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं कर रहा। सो मास इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड then यूनिफॉर्मली नहीं है एग्जैक्टली। then geometrical center and center of mass are different location at a different location लोकेशन। okay, any problem? हेलो, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। No, sir. नो प्रॉब्लम अच्छा, सर। अब क्वेश्चन मैंने आपसे No, sir. पूछा कि सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो सेंटर ऑफ मास हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया और ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया, वो तीनों कॉन्साइड कब करेगा? तीनों कब कॉन्साइड करेगा? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ज्योमेट्रिकल सेंटर तीनों कब कॉन्साइड करेगा? हेलो जी, कब कॉन्साइड करेगा? Yes, sir. सर क्वेश्चन। हेलो, मैंने पूछा ज्योमेट्रिकल सेंटर, यस। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तीनों ही एक ही जगह पे कब लाई करेगा? जब मास जब इक्वली उसका डिस्ट्रीब्यूट weight, होगा तब। हाँ, जब मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यूनिफॉर्मली और जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जब कि उसका लोकेशन सेम होगा। नहीं, जब ग्रेविटेशनल फील्ड, कल बताया था ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कब कॉन्साइड करता है? जब ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म हो। तो ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म होगा और तुम्हारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो उस वाले सिचुएशन में तीनों ही के तीनों एक जगह पे लाई करेंगे। आया बात समझ में? हेलो, मींस सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ yes, sir. ग्रेविटी एंड ज्योमेट्रिकल सेंटर coincide lies at same position, lies at same location when G is uniform and mass is also uniform, M is also uniform. Correct? हेलो, ठीक है? Yes, sir. Okay, so then what सर is, नहीं लिखा, नहीं लिखा। हाँ, lies at same location when ग्रेविटी है ना सर, जी का मतलब। हाँ जी, मतलब ग्रेविटेशन फील्ड। ओके सर। ओके, सो दिस इज द क्लियर थिंग, हो गया क्लियर ये? यूनिफॉर्म एंड मास इज यूनिफॉर्म। यस सर। अच्छा, ठीक है। एक एप्लीकेशन देखते हैं थोड़ा सा, कि एक रॉड है आपके पास, ठीक है, जस्ट राइटिंग हियर, जिसका मास जो है, जो लीनियर मास डेंसिटी जो है, इसका लीनियर मास डेंसिटी जो है लैम्डा, दैट इक्वल टू दे रखा है लैम्डा नोड 1 प्लस x by L, where L is the
length of this rod. L is the length of this rod. Find the position of center of mass. Okay, so this is the rod. If the total mass is of rod is m, neglect lateral dimension. Okay, so you have to calculate the center of mass, location of center of mass for this rod. Okay, from this axis, यहां से इस एक्सेस से इस एंड से आपको बताना है कि कहां पे सेंटर ऑफ मास होगा. यदि लीनियर मास डेंसिटी क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है. ठीक है, और दूसरा क्या चीज बोल रखा है कि रॉड का जो टोटल मास है वो कितना है, m है, और इसका जो ये डायमेंशन है, मतलब ये लेंथ है, ये कहलाएगा इसका लेटरल डायमेंशन, है ना. दिस इज कॉल्ड लेटरल डायमेंशन. ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया और ये क्या कहलाएगा, लेटरल. तो ये वाला जो डायमेंशन है, मतलब ये जो लेंथ है परपेंडिकुलर टू दिस इज नेग्लिजिबल. ओके, सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. यस सर. ये नेग्लिजिबल होने का मतलब क्या हुआ, ये डायमेंशन नेग्लिजिबल होने का मतलब क्या हुआ. अगर मैं कहता हूं ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो मुझे बताओ लेटरल डायमेंशन नेग्लिजिबल होने का मतलब क्या होगा. हेलो जी. क्या यस होगा. सर. मतलब ये डायमेंशन नेग्लिजिबल होने का मतलब क्या हुआ. मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर उसको ले चाहे ना ले. क्या चीज का फर्क नहीं पड़ता है. उसका डायमेंशन जब हम लेंगे. हाँ, वो तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट क्या चीज होगा अगर मैं लेटरल डायमेंशन को नेग्लेक्ट कर देता हूं, तो सेंटर ऑफ मास कौन से एक्सेस पे लाई करेगा, एक्स एक्सेस पे या वाई एक्सेस पे. वाई एक्सिस पर. वही पे. वाई पे कहा यार, वाई वाई ये हो गया ना, ये हो गया. अब मैं ये डायमेंशन नेग्लिजिबल कह दे रहा हूं, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा. जब एक्स नेग्लिजिबल होगा तो वाई पर ही करेगा ना सर. वाई डायरेक्शन में जो लेंथ है रॉड का, वो तो नेग्लिजिबल है ना. करिश्मा नहीं बोल रही आज, क्या हो गया. जी. हेलो, हेडेक आ गया होगा मेरे जैसे कल की तरह. पता नहीं सर. क्या हो गया. हेलो उसका माइक तो ऑन है. हेलो, उसका माइक तो ऑन है सर, बाकी पता नहीं. हेलो. ऑनलाइन क्लास में झोल होता है कभी बार को, झोल समझते हो. झोल. तो आप लोग बताओ. अरे भाई एक चीज मुझे बताओ, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो लेंथ है, ये जो डायमेंशन है, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ना. तो सेंटर ऑफ मास किस लाइन पे लाई करेगा यार, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा ना. यस. भाई रॉड का डायमीटर अगर मान लो बहुत छोटा है, तो सेंटर ऑफ मास किधर लाई करेगा. अगर ये डायमीटर है ना, अगर ये डायमीटर बहुत छोटा होगा, तो इसी एक्सिस पे लाई करेगा ना सेंटर ऑफ मास. तो नहीं आया इसमें. हाँ. तो यानी इसमें वाईसीएम क्या समझ होगा, गया. हाँ सर. जीरो होगा. वाईसीएम क्या होगा, जीरो होगा. तो लेटरल डायमेंशन जीरो. नेग्लेक्ट करने का मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है. तो तुम्हें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, एक्सियम कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है, एक्सियम कैलकुलेट करना है. ठीक है, वाईसीएम जीरो हो जी. जाएगा क्योंकि डायमीटर नेग्लिजिबल Yes, है. तो एक्सियम निकालना है. कैसे निकालें,
तभी मैंने बोला कि क्या मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। मास क्या है, मास क्या है, यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या करोगे, एक छोटा सा एक छोटा सा एक छोटा सा मास कंसिडर करोगे रॉड के ऊपर। आ रहा बात में, एक छोटा सा मास कंसिडर करोगे रॉड के ऊपर, एक छोटा सा मास। ठीक है, स्टेप बता रहा हूं कैसे करना है। जब भी रॉड वगैरह दे रखा हो, रिंग वगैरह दे रखा हो, उसका सेंटर मास ऐसे निकालना है। एक छोटा सा मास कंसिडर कर लिया, ये लेंथ मान लिया मैंने dx है। क्या है, dx है। कितने डिस्टेंस पे कंसिडर किया, एट ए डिस्टेंस x के ऊपर किया। कितने डिस्टेंस पे किया, एट ए डिस्टेंस x के ऊपर एक छोटा सा मास कंसिडर किया, जिसका मास क्या है, dm। मास क्या है, dm। ठीक है, ओके। हाँ यस सर। जी। हाँ, तो एक्सीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सीएम इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन x dm अपॉन में dm। ठीक है, डीएम। अच्छा, लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास पर हाँ। यूनिट वॉल्यूम, बट उसे कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। यदि मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर वॉल्यूमेट्रिक दोगे, डेंसिटी। वॉल्यूम। हाँ, अगर मास को लेंथ से डिवाइड कर देते हो तो उसे कहते हैं वो हमारे था सर स्टाइकियोमेट्री में, हाँ स्टाइकियोमेट्री चैप्टर में है। हाँ, अगर मास को लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। क्या कहते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। यानी अगर इस रॉड का लेंथ l है और इसका टोटल मास m है, तो लीनियर मास डेंसिटी क्या हो जाएगा, m/l। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, हेलो। नहीं। तो अब यहाँ पे रॉड का जो लीनियर मास डेंसिटी दे रखा है वो कितना दे रखा है, लैम्डा नोड इनटू में 1 + x। तो लैम्डा इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा मतलब लीनियर मास डेंसिटी। तो इस छोटे से पोर्शन का मास कितना है, dm। इस छोटे से पोर्शन का लेंथ कितना है, dx। मास पर यूनिट लेंथ, इस छोटे से पोर्शन का मास क्या हो गया, dm। इस छोटे से पोर्शन का लेंथ क्या हो गया, dx। कह सकता हूं, हेलो। यस सर। सो व्हाट इज द dm, जी। दैट इज लैम्डा इनटू dx, लैम्डा इनटू dx। ठीक है, डीएक्स। तो एक्सीएम इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, जी। x इंटू लैम्डा इंटू dx, dm के बदले। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि यहां पर देखो x वेरिएबल था, ये x चेंज कर रहा है, बट हमें यहाँ पर इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, m के रिस्पेक्ट में। तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, m को x में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड बाय dm के बदले क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू dx। ठीक है, अच्छा, x की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज कर रही है, x इक्वल टू 0 से लेकर के, देखो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाता, अगर ये छोटा सा पार्टिकल यहाँ पे होता तो x इक्वल टू क्या हो जाता, 0। और ये छोटा सा पार्टिकल यहाँ पे पहुंच जाएगा जीरो। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, l। ठीक है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज कर रही है, यस। 0 से लेकर के l तक, x इक्वल टू 0 से लेकर के एल तक। l तक। ठीक है, एल तक। हाँ, जी। यस सर। तो एक्सीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज x, व्हाट इज द लैम्डा, लैम्डा क्या है वहां पर, लैम्डा नोड 1 प्लस में xl है ना। ठीक है, लैम्डा नोड हाँ 1 प्लस x/l dx 0 to l अपॉन लैम्डा नोड 1 प्लस x/l इंटू dx। करेक्ट, जी।
लैम्डा नोड क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर लिख दूं हाँ तो क्या आ जाएगा 0 to L जी लिख सकते। x को इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर बाय L इंटू डी एक्स अपॉन लैम्डा नोड क्या है, कांस्टेंट, तो बाहर आ गया 0 to L 1 प्लस एक्स बाय L इंटू डी एक्स। ठीक है, नाउ जी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, xm इक्वल टू व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, l क्या है, कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाय कांस्टेंट 3, लिमिट पुट करेंगे 3 0 L, लैम्डा से लैम्डा नोड कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2L 0 to L। ठीक है, तो एक बार L पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, तो L पुट करो, क्या आ जाएगा L स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 बाय L इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा L क्यूब बाय 3, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा -0 डिवाइड बाय L प्लस L स्क्वायर डिवाइड बाय L square by -0। 2L। ठीक है, एक L से L कैंसिल हो गया, तो से यहाँ से एक L से L कैंसिल हो गया, तो एक्सीएम क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू L स्क्वायर बाय 2 प्लस L क्यूब बाय L स्क्वायर बाय 3 अपॉन में L प्लस L बाय 2, so this become L square 5 by 6 divide by 3L by 2, so this is 2, this is 3, एक L से L कैंसिल हो गया, तो ये कितना जाएगा 5 by 9L, करेक्ट, हेलो जी so what is Yes, the sir. axiom, center of mass of the rod become what 5 by 9L, करेक्ट, 5 by 9L। हाँ मतलब कि Yes, sir. मतलब कि क्या हुआ कि ये जो रॉड था जिसका लीनियर मास डेंसिटी कितना था लैम्डा नोड 1 प्लस एक्स बाय एल, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे लाई करेगा एक एंड से, मतलब अगर मैं ये कहता हूं हाँ इस लाइन से कितने डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास होगा, इसका सारा का सारा मास लाई करेगा, वो करेगा आपका इस जगह पर, और ये डिस्टेंस कितना होगा 5 बाय 9L। ठीक है, यदि लेंथ इसका L हुआ तो, ठीक है, बट लीनियर मास डेंसिटी क्या है इसका लैम्डा नोड 1 प्लस एक्स बाय एल, बट अगर मान लो ये रोज रॉड है, बट आप जो इसका मतलब क्या है मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, देखो क्योंकि मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, मास यदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो इसका सेंटर ऑफ मास, रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करता, अगर मास कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, आपके पास कोई रॉड होता है ना जिसमें मास कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करता है, सेंटर पे। सेंटर पे कहां पे होगा इसका सेंटर, बीच में, बीच L/2 पे, L/2 पे है ना, L/2 पे जी L/2 पे यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, यदि मास क्या हुआ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, ठीक है, बट यहां पे देखो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है जी, इसीलिए यहां पर जो लीनियर मास डेंसिटी है वो ये दे रखा है, सो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये रिलेशन बता रहा है मास इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या ठीक है,
मास यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यस सर, है ना, बट यहाँ पर मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ तो सेंटर ऑफ मास रॉड का कहां पे लाई करता है, L/2 पे, ठीक है। बट ये जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस मेथड से कर रहे हैं, इंटीग्रेशन मेथड से। किससे कर रहे हैं, इंटीग्रेशन मेथड से। इंटीग्रेशन। प्रॉब्लम यहाँ पर Yes, सर अब मैं लिख लूं इंटीग्रेशन पूरा? लिखो। नो नो प्रॉब्लम। हाँ,